So dear students, today we are continuing our topic of compounds of sulfur. So first compound is sulfur dioxide and its formula is SO2. Okay, sulfur dioxides, oxides of sulfur. So first topic is of its preparation. So how can we prepare sulfur dioxide? It is very easy. Sulfur when reacts with oxygen, okay, sulfur in its solid state, when it reacts with gaseous oxygen, it gives you SO2 in the form of gas. Okay, sulfur dioxide is a gas, so SO2 is formed from sulfur and oxygen, one of the simplest preparation. Now second preparation is from sodium sulfite, right? From sulfite we can get SO2 gas. So how? In laboratory, this is our laboratory preparation, that sodium sulfite, SO3 is sulfite. Sodium sulfite when reacts with sulfuric acid, okay, aqueous sulfuric acid, it forms, first of all it forms sodium sulfate. Sulfite gets converted to sodium sulfate and another is water, and our main constituent is sulfur dioxide. In the form of gas it is liberated. Okay, so sodium sulfite reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate, water and sulfur dioxide. Second preparation. Now third preparation is from sulfides, and this is one of the industrial method. Okay, so how is it formed? So from sulfides, it is an industrial method. Zinc sulfide, what we will take? Zinc sulfide on oxidation. Okay, zinc sulfide on oxidation gives you, on heating it gives you zinc oxide. It is solid in state, and here see sulfur dioxide in solid form we are obtaining. Okay, zinc sulfide oxidation on in presence of heat, it gives you zinc oxide plus sulfur dioxide in solid form. Now next is iron pyrite, that is FeS2. Okay, it is an ore of sulfur, FeS2, iron pyrite also we say it, or ferrous sulfide also we say it. Okay, ferrous sulfide or iron pyrite. Iron pyrite name you should learn. Again similarly also its oxidation on heating will give Fe2O3, that is ferrous oxide, and sulfur dioxide in the form of gas we will obtain. Okay, so these both the reaction of sulfide and industrial method is of oxidation. Addition of oxygen is occurring, ferrous is getting converted to ferrous oxide, zinc sulfide is getting converted to zinc oxide, and our main product is SO2 in the form of, here in the form of solid, here in the form of gas we are getting. Okay, so these were the preparation. First preparation from sulfur, second from sulfite, and third from sulfides. Okay, these are very simple processes. Now next is the physical property of SO2. What is the physical property? So first physical property is, it is a colorless gas with pungent smell. How is it? It is a colorless gas with pungent smell. It is poisonous in nature. Okay, it is poisonous in nature. It is highly soluble in water, and its solution in water is called as sulfurous acid. Okay, its formula we had seen, H2S2O7, right? It is highly soluble in water, and in water it forms which type of acid? Sulfurous acid. Its formula is H2S2O7. It liquefies at room temperature. Okay, RT means room temperature, under a 2 atmosphere pressure, and boils at 263 Kelvin. Right, it liquefies at room temperature. So this was about physical properties of sulfur dioxide. Superficially you can remember it is colorless, pungent, poisonous in nature, highly soluble in water, and liquefies at room temperature.
under 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin. Okay. Then comes the chemical properties. In chemical properties, we study the chemical reactions. So first chemical reaction is reaction with chlorine. What happens? Sulfur dioxide reacts with chlorine in presence of charcoal. Okay, in presence of charcoal to form SO2Cl2, which is nothing but your sulfuryl chloride. Okay, in the liquid form it is formed sulfuryl chloride, SO2Cl2. Simple addition reaction it is. In the presence of charcoal, it gives us SO2Cl2. Okay. Next reaction is oxidation. Sulfur dioxide on oxidation in presence of catalyst V2O5, which is nothing but your vanadium pentaoxide. It gives us sulfur trioxide. Simple addition reactions. Okay. Sulfur dioxide on oxidation in presence of catalyst. Remember the catalyst V2O5 vanadium pentaoxide. It gives you sulfur trioxide in gaseous form. Okay. You need to mention the states. It is important. Then comes next reaction, reaction with sodium hydroxide, that is NaOH. With NaOH, sulfur dioxide will form sodium sulfite and water molecule. Okay, Na2SO3, which is nothing but your sodium sulfite, SO3. Okay, SO2 again gets converted to SO3. Next reaction is with SO3, that reaction with sodium sulfite. Sulfur dioxide in aqueous state we can write, or in presence of water it forms sodium hydrogen sulfide. Okay, sodium hydrogen sulfide NaHSO3, or else you can say sodium bisulfite also you can say, or sodium hydrogen sulfite also you can say. Okay, NaHSO3 when sodium sulfite reacts with sulfur dioxide and water. Okay, or aqueous solution of sodium sulfite gives us sodium hydrogen sulfide. Next reaction, which shows the reducing property of sulfur dioxide, is, see how it reduces. For this we need to take moist SO2, means water will be there in the reaction. Okay, moist SO2 shows acts as a reducing agent. Moist SO2 acts as a reducing agent. How it reduces? It reduces ferric ions, right? Fe+3 is ferric ions, means ferric salt. Any of the ferric salt you can take. So ferric salt get reduces to ferrous salt. Okay, which is the reducing agent? SO2. Okay, moist SO2 or in presence of water, SO2 behaves as a reducing agent. So it will reduce ferric salts. See, +3 is getting converted to +2. Means oxidation number is becoming less. So which type of reaction? Reduction reaction. Okay, and it itself forms SO2 to SO4 2-. Okay, SO2 gets converted to sulfate 2-. Okay, plus 4H+ ion. Here it is acting as a reducing agent. It reduces ferric ions to ferrous ions. Okay, 3+ is getting converted to 2+. This indicates that oxidation level number is getting lessened, so reduction is going on in this reaction. Which is the reducing agent? Sulfur dioxide. Similar reaction is of KMNO4. Okay, potassium permanganate in presence of moist SO2 or SO2 in presence of water. It reduces. See here, potassium permanganate get reduced to potassium sulfate. Permanganate gets converted to manganese sulfate, and again water is there. It also get reduced to, it gets oxidized to. Okay, SO2 to SO4. See, oxygen molecule are increasing here. So SO2 is getting converted to SO4. So here oxidation is happening. But it is with the help of SO2, KMNO4, it itself is getting reduced to potassium sulfate and manganese sulfate. Okay, when you will calculate the oxidation number of here potassium and manganese, it will be higher as compared to K2SO4 and MnSO4. Okay, how do we come to know that reduction has been occurred?
by decolorization. Decolorizes the KMNO4. SO2 decolorizes the KMNO4. What is the color of KMNO4? It is violet in color. It become colorless. So this change in color shows us that reduction has been occurred with KMNO4. Okay. Next reaction is, here we can calculate the oxidation state also. So once you try to calculate the oxidation state, if you know to come, means अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो I will tell you in query session how to calculate the oxidation state. Okay, take it as a homework to calculate KMNO4. So here KMNO4 get reduced by sulfur dioxide, that is moist sulfur dioxide. How is it happening? We will come to know by knowing its oxidation state. So here in case of KMNO4, oxidation state of Mn is +7. Okay, oxidation state of Mn is +7. On reaction or after reaction, it forms K2SO4, that is potassium sulfate and manganese sulfate. See, Mn is having +7 oxidation state. After reaction, it is having oxidation number of +2. So here also we conclude that +7 oxidation state is becoming less to +2. So here also reduction is happening of Mn, right? So it is getting converted to MnSO4. +7 oxidation state is getting converted to +2, and KMNO4 it is getting converted to K2SO4. Okay, and also the color difference is there. Color change also shows us that reaction is completed, that complete reduction has been happened. How? The violet color get decolorizes, that is it become colorless. Here we will draw the conclusion that reaction has been completed or reduction has been happened. So here also SO2 is acting as a reducing agent. Similarly, in case of iodine also, see molecular iodine, it gets converted to halogen acids. See how sulfur dioxide or moist sulfur dioxide when reacts with halogen, for example iodine, it forms sulfuric acid plus HI. See here oxidation number of any molecular atom or any molecule is having 0. On reaction it is getting converted to -1. Okay, -1 is less than 0. So therefore here also we conclude that reduction has been happened here in this reaction, and reducing agent is SO2. So in these three cases, in ferric ions, in KMNO4 and iodine, sulfur dioxide in moist condition is acting as a reducing agent. You should remember. Now we will discuss the structure of sulfur dioxide. How is it? It is having angular structure with OSO bond angle of 119.5 degree. 119.5 degree is the bond angle between OSO bond. 119.5 degree of bond angle is there. So it is similar to ozone. In case of ozone we were having 3 oxygen. Here in case of oxygen it is having sulfur. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 electrons in the valence shell, and in the valence shell of sulfur 6 electrons should be there. 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Okay. So like this it is sharing its electron. Here also same, these are the resonance structure. So one point to note is that SO double bond arises from D pi P pi bonding. Okay, arises from this double bond is arising from D pi P pi bonding. It is a resonance hybrid of 2 canonical forms. Okay, when these resonating structures are there, we called it as canonical forms. Okay, it is a resonance hybrid of 2 canonical forms. Means either this sulfur and oxygen will have double bond, or this sulfur and this oxygen will have double bond. Okay, that is nothing but a canonical form. Now what about D pi and P pi? D pi means D subshell
of sulfur will be there, and P pi means P subshell of oxygen will be there. Why? Because D subshell is absent in oxygen. So D subshell of sulfur will overlap with the P subshell of oxygen. And which type of bond they form? Pi bond. So therefore D pi P pi. Okay, D pi P pi bond. Now our next topic is, last topic for sulfur dioxide is its uses. Okay, so first uses in refining of petroleum and sugar. Okay, petroleum such as petrol, diesel, kerosene and all, in refining. Okay, प्योर करने के काम में आता है. And sugar also. Okay, in bleaching wool and silk. Okay, wool एंड सिल्क को ब्लीच करने के लिए, कलरलेस को कलरिंग मैटर कन्वर्ट करने के लिए इट इज यूज टू ब्लीच. ओके, एज एन एंटी क्लोर और डिसइंफेक्टेंट. ओके, डिसइंफेक्ट मीन्स जर्म्स वगैरह किल करने के काम में भी इट इज यूज्ड. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. ओके, इन प्रिजर्वेटिव इन वेरियस फूड स्टफ ऑल्सो इट इज यूज्ड. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड. Okay, preparation we had seen in reaction part. Sulfuric acid is prepared, sodium sulfite is prepared, sodium hydrogen sulfide is also prepared. Also liquid SO2 is used as a solvent to dissolve number of organic and inorganic chemicals. Okay, in liquid form it is also used as a solvent for dissolving organic as well as inorganic chemicals. So these are the common uses. Okay, पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. पूरा सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. इन दैट यू नीड टू कवर इट्स इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड यूजेस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड. So students, today now we are going to start our next topic of manufacture of sulfuric acid. Okay, this is the contact process. Okay, this is a contact process. This is a flow diagram for the manufacture of sulfuric acid, which is known as contact process. Okay, so this is all the working of sulfuric acid. So how does it work, or what is the flow diagram? We will study it in details. So first of all, see here, one tower is placed in which from these 2 openings are there, or one opening, from this one opening air is let to be get inside. Okay, air को यहाँ से inlet बनाया हुआ है. This is an inlet for air. Okay, air में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है. ओके, एंड डस्ट इम्प्यूरिटीज वगैरह सब है. तो एयर के साथ साथ में सारी इम्प्यूरिटीज भी यहाँ से अंदर जाएगी. अलॉन्ग विथ इट दिस ब्लू कलर इज नथिंग बट योर सॉलिड सल्फर particles. Okay, solid sulfur particles are placed and air is allowed to enter through this inlet, and this is nothing but your sulfur burner. Okay, this is a tower of sulfur burner. Now when sulfur reacts with oxygen, all of you know what does it form? It forms sulfur dioxide. Okay, so this is the first part in the sulfur burner. What is happening, क्या हो रहा है ये देखेंगे कि सल्फर और सल्फाइड ओर जो है, ओके, सल्फाइड ओर या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, आयरन पायराइड. कौन सा ओर है सल्फर का? आयरन पायराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? FeS2. राइट, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. किसके साथ में हो रहा है इनका? बर्निंग कर रहे हैं हम लोग, या फिर उसको एक और सेकेंड नेम है रोस्टिंग इन एयर. ओके, बर्निंग और रोस्टिंग इन एयर क्या फॉर्म होगा? सॉलिड सल्फर विल रिएक्ट विथ गैसियस ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2. और ये भी साथ में रहेगा, आयरन पायराइड्स भी रहेंगे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, इन द फॉर्म ऑफ आयरन पायराइड. इनके जो ओर है हमने डाले हैं, इट विल ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एंड ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स आयरन सल्फाइड, सॉरी आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, और हमको चाहिए क्या? सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए.
क्यों चाहिए? क्योंकि हमको इससे क्या बनाना है, H2SO4। तो डायरेक्टली H2SO4 नहीं बनेगा, पहले SO2 को क्या करना पड़ेगा, SO3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, तो वो सेकेंड स्टेप में होगा। कैसे? तो हम लोग इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट डालेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगेन इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैटलिस्ट इज इम्पोर्टेंट। और सेकेंड थिंग क्या करना है, हियर लो टेम्परेचर कंडीशन इज मेंटेन, 720 केल्विन का टेम्परेचर होना है एंड हाई प्रेशर ऑफ 2 बार। ओके, ऐसा क्यों होना है, ये टेम्परेचर कंडीशन क्यों होना है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर? क्योंकि रिएक्शन कैसी चाहिए हमको, फॉरवर्ड। ओके, रिएक्शन हमको फॉरवर्ड चाहिए क्योंकि दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्शन हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। हमको क्या बनाना है, H2SO4। तो देयरफॉर टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई होना है। और दूसरी बात ये कि दिस रिएक्शन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। सो देयरफॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के वजह से और रिवर्सिबल रिएक्शन होने के वजह से हमको 2 कंडीशन मेंटेन करने हैं। कौन से? लो टेम्परेचर के और हाई प्रेशर के। ओके, तो ये 2 पार्ट के हम टॉवर्स पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आएंगे। तो देखो, पहले सल्फर बर्नर में सल्फर को एयर के साथ रिएक्ट किया है, उसमें डस्ट प्रेसिपिटेटर है, जो एयर के साथ में डस्ट वगैरह आई है वो अलग से प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक है, लगाए हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। और यहाँ पे जब सल्फर आएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन के आएगा, तो उसको हॉट वाटर से हम स्प्रे करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज हॉट वाटर स्प्रे, हॉट H2O स्प्रे लिखा है मैंने। हॉट H2O स्प्रे इसलिए करना है ताकि सल्फर में जो इम्प्यूरिटीज है, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने के बाद में उसमें आ गई है, वो वेस्ट एसिड के फॉर्म में निकल जाए। इसके लिए हॉट H2O का स्प्रे किया हुआ है। साथ में और कौन सी इम्प्यूरिटीज है, CO2 हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन है तो अगर कार्बन की कोई इम्प्यूरिटी है सल्फर के साथ में तो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। आर्सेनिक की कोई इम्प्यूरिटी है तो आर्सेनिक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगी, और अगर डस्ट है तो डस्ट के फॉर्म में निकल जाएंगी। तो ये सारी वेस्ट एसिड के फॉर्म में इम्प्यूरिटीज इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, वाटर डालना है हमने, तो वाटर मीन्स मॉइस्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेकिन हमको आगे मॉइस्ट कंडीशन का सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के स्प्रे करने वाले हैं यहाँ से। ओके, सो दिस इज अ ड्राइंग टॉवर। ड्राइंग टॉवर क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कैसा नेचर है, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर ड्राइंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें हमने स्प्रे किए थे पहले के टॉवर में, वो यहाँ से ड्राई हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से जब निकलेंगे, तो क्या मिलेगा, ड्राई SO2 मिलेगा, राइट। ड्राई SO2, सल्फर डाइऑक्साइड हमको कैसा चाहिए, ड्राई चाहिए, और डस्ट वगैरह उस पर लगी हुई नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो चेम्बर है ये वाला, इसमें से जरूरी नहीं है कि सबकी सब पूरी डस्ट निकल गई तो और आर्सेनिक ऑक्साइड वगैरह सबकी सब निकल गया। तो वो निकालने के लिए हम फिर से क्या लगाने वाले हैं आगे में, ड्राई SO2 को हम फिर से किसके अक्रॉस पास करने वाले हैं, आर्सेनिक प्यूरिफायर से, ठीक है। आर्सेनिक प्यूरिफायर कैसे बना हुआ है, इट इज कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये आर्सेनिक ऑक्साइड को निकालने में मदद करता है, जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो है, इसीलिए आर्सेनिक प्यूरिफायर लगाया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट। ओके, फिर हमको टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करनी है, इसलिए प्री हीटर लगाया हुआ है यहाँ पे कि हमको इतना ही टेम्परेचर चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करने के लिए प्री हीटर लगाया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर, और फिर कॉन्टैक्ट टॉवर भी बोलते हैं। क्यों? कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम इसी के वजह से आया है क्योंकि हमको कैटालिसिस जो हम डाल रहे हैं V2O5, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद SO2 जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू SO3, राइट। V2O5 acts as a catalyst to convert SO2 to SO3। ओके, यहाँ पर SO3 गैस के फॉर्म में निकलेगा। अब क्या होगा, SO3 बन गया है, फिर से अगर SO3 के साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो H2SO4 उसको डिहाइड्रेट कर देगा, मीन्स ड्राई कर देगा। तो प्योर SO3 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से H2SO4 के जो स्प्रे आएगा उसके साथ में रिएक्ट करके इट विल फॉर्म ओलियम। ओके, SO3 रिएक्ट विथ H2SO4 एंड इट विल फॉर्म ओलियम। ओके, इसके लिए थर्ड रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर,
देखो क्या हो रहा है थर्ड पॉइंट में, थर्ड कैटालिटिक कन्वर्टर होने के कन्वर्जन होने के बाद में कि फ्रॉम कैटालिटिक कन्वर्टर जो SO3 गैस जो निकली थी इट इज एब्जॉर्ब इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7। ओके, H2S2O7 देखो यहाँ रिएक्शन भी दी हुई है। SO3 इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म H2S2O7 विच इज नथिंग बट योर ओलियम। इस ओलियम को फिर हम डाइल्यूशन में डालते हैं, मतलब कि वाटर में डालते हैं। तो जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो हमको प्योर फॉर्म में H2SO4 मिलता है, दैट इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड। हमको 96 to 98% प्योर फॉर्म में मिलता है। ओके, तो सारी डस्ट भी निकल गई, सारे इम्प्यूरिटीज भी निकल गए, प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पहले यहाँ पे ओलियम कन्वर्शन हो गया और उसके बाद में फिर से हम उसको जब फर्दर डाइल्यूट करते हैं तो इट गेट इजीली डिजोल्व इन वाटर और फिर हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है विच इज 96 to 98% प्योर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलने का मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट में किसके कैटलिस्ट जो है V2O5 इसके कॉन्टैक्ट में आने से SO3 में कन्वर्जन होता है SO2 का, दैट्स वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसी टाइप का एक और प्रोसेस है लेड चेम्बर प्रोसेस, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है। ये विदाउट कैटालिसिस लेड चेम्बर, लेड ऑक्साइड को यूज करके हम लोग H2SO4 बनाते हैं, जिसमें कोई भी कैटालिस्ट नहीं लगता है। दिस इज ऑल्सो अनदर प्रोसेस फॉर मेकिंग H2SO4, राइट। तो यहाँ पर देखो H2SO4 के कांटेक्ट में SO3 मीन्स रिएक्शन H2SO4 का रिएक्शन SO3 के साथ में होगा और ये जो क्वार्ट्ज बेड्स लगे हुए हैं ये फॉर कैटालिसिस जो है उसको रिएक्ट कराना चाहिए इसके साथ में, SO3 को H2SO4 के साथ में, उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज का पता है फॉर्मूला आप लोगों को, तो उसको रिएक्ट होना चाहिए, इसी के लिए क्वार्ट्ज के बेड्स लगे हुए हैं। और फिर अल्टीमेटली SO3 विल गेट कन्वर्ट टू ओलियम विद द हेल्प ऑफ H2SO4 एंड फिर वाटर का स्प्रे करके ओलियम विल गेट कन्वर्ट टू H2SO4 विच इज नॉट 96 to 98% प्योर इन फॉर्म। ठीक है, समझ गया सबको। वंस अगेन आई रिपीट द प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, सल्फर बर्नर, उसमें एयर डालेंगे, सल्फर डालेंगे, एयर के साथ में इम्प्यूरिटीज डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब आएंगे, तो उसके लिए डस्ट प्रिसिपिटेटर लगाया हुआ है। यहाँ से डस्ट वगैरह सब बाहर निकलेंगी ये प्रिसिपिटेटर से होकर, यहाँ पे उसका आउटलेट दिया हुआ है। तो वेस्ट एसिड के फॉर्म में जैसे CO2, AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेंगे। हॉट वाटर के स्प्रे देंगे तो उसके वजह से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मॉइस्ट हो जाएगा, उसको फिर ड्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसका स्प्रे करेंगे। इसमें से भी कुछ वेस्ट इम्प्यूरिटी होंगी तो वो इस आउटलेट से बाहर निकल जाएंगी और ड्राई SO2 और O2 को हम फिर से आर्सेनिक प्यूरिफायर के यूनिट से पास करेंगे, ताकि अगर कुछ इम्प्यूरिटीज बची है अभी भी तो वो आर्सेनिक प्यूरिफायर जो किससे बना हुआ है, जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इससे फॉर्म में बाहर निकल जाए। इसके बाद हमको टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करना है, प्रेशर कंडीशन मेंटेन करना है, तो हमने प्री हीटर लगाया है यहाँ पे। तो प्री हीटर टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करेगी और जो कैटलिस्ट है V2O5 SO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, SO3 में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद से कैटालिटिक कन्वर्टर या V2O5 के कांटेक्ट में आने के बाद में SO2 गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट कन्वर्ट टू SO3 और SO3 के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद में ये गैसियस फॉर्म में फिर से हम H2SO4 का स्प्रे करेंगे, तो यहाँ पे इट विल गेट कन्वर्ट टू ओलियम विच इज नथिंग बट H2S2O7 विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज बेड्स। ठीक है, क्वार्ट्ज बेड्स का भी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद में ओलियम को हम वाटर से स्प्रे करेंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन द फॉर्म ऑफ 96 to 98% प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होगा। दिस इज द मोस्ट रिलायबल और आजकल यही प्रोसेस लैब में यूज होता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। तीनों भी जो रिएक्शन का पार्ट है, फर्स्ट देखो सिंपल है, सल्फर का ऑक्सीडेशन SO2 या तो फिर आयरन पायरेट का ऑक्सीडेशन ले लो, SO2 मिलेगा। इसका ऑक्सीडाइजेशन हम लोग फिर से कैटालिस्ट यूज करके करेंगे V2O5। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन मेंटेन करने वाले हैं क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है इसके लिए। और थर्डली SO3 को हम लोग H2SO4 का स्प्रे करके उसको ओलियम में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर ओलियम को डाइल्यूशन में डालेंगे या फिर वाटर में डालेंगे, तो हमको 96 to 98% प्योर फॉर्म में H2SO4 मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
So our next topic is physical properties of H2SO4. So H2SO4, how is it? It is colorless, dense, oily liquid. Okay, it is colorless, dense. Okay, गाढ़ा गाढ़ा रहता है, oily liquid है. Concentrated form में it is very dense and oily type of liquid. Its density is 1.84 gram per centimeter cube at 298 Kelvin. Okay, its density is 1.84 gram per centimeter cube. It freezes at 283 Kelvin. Okay, it freezes at 283 Kelvin and boils at 611 Kelvin. It is highly corrosive and produces severe burns on the skin. अगर एक ड्रॉप भी आपके स्किन पे अगर गिरता है उसका तो स्किन पूरी ये हो जाएगी, जल जाएगी. इट इज सेड कि इट इज हाईली करोजिव, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज केमिकल प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाई इज इट एसिडिक. ओके, हम क्यों बोलते हैं कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका रीजन ये है कि इट आयोनाइजेज इन एक्वियस सोल्यूशन. ठीक है, इजीली आयोनाइज हो जाता है. कैसे? तो अगर हमने H2SO4 को वाटर में डाला तो इट फॉर्म H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन. ओके, हाइड्रोनियम आयन्स एंड HSO4- मीन्स H2SO4 अपना एक H वाटर को इजीली दे देता है. ओके, एंड इट फॉर्म्स H3O+ पॉजिटिव आयन्स एंड HSO4-, एक H निकल गया इसलिए एक ही -चार्ज. ओके, इन एक्वियस स्टेट. यहाँ पर इसका जो Ka वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 10, मतलब Ka मीन्स योर डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 10, विच इंडिकेट्स कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, फिर से अगर हम HSO4- को एक्वियस सॉल्यूशन को वाटर में डालते हैं तो फिर से इट फॉर्म्स अगेन हाइड्रोनियम आयंस और SO4- आयंस बन जाते हैं. मीन्स इट रेडिली गिव्स इज H+ आयन. अपने H+ आयन वो इजीली दे देता है, जहां पर उसका K कितना हो जाता है 1.2 इंटू 10⁻². ओके, तो ये वैल्यू जो है, ये Ka वैल्यू ये डिसाइड करती है कि कैसा है कंपाउंड, एसिडिक नेचर में है कि बेसिक है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इसकी 10 से ज्यादा है. सी हियर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, मतलब कि 10 से अगर ज्यादा है तो H2SO4 is largely dissociated into H+ and HSO4- ions and thus H2SO4 is a strong acid. ठीक है, बहुत इजीली डिसोसिएट कर देता है. 2H+ आयन इजीली ये अपने दे देता है जब भी हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं. तो H+ आयन देना मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना. और इसका pH कितना है? इट इज नियरली 1. ठीक है ना, एसिडिक बिलो 7 हम एसिडिटी गिनते हैं pH वैल्यू, तो इसका pH कितना है? नियर अबाउट 1. तो देयरफॉर ऑल्सो वी कंक्लूड कि H2SO4 का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड. सारे एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? H2SO4. क्यों? क्योंकि 2 H+ आयन देता है, pH 1 है और Ka वैल्यू 10 से ज्यादा होने की वजह से. ओके, ये 2-3 रीजंस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है ये. इसके लिए हम कौन सी रिएक्शंस देखने वाले हैं? रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे? रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ पर जब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? देखो, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट इटसेल्फ गेट रेड्यूस टू SO2. ठीक है, इट इटसेल्फ गेट रेड्यूस टू SO2. तो देखो कैसे रिएक्शन कैसे होंगी. तो कॉपर हम लेने वाले हैं. इट इज अ मेटल. कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विथ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड देन इट फॉर्म कॉपर सल्फेट. एंड इसमें का दूसरा SO4 मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? SO2 में. ठीक है, SO2 में कन्वर्ट हो गया है. तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ. इट इटसेल्फ गेट रेड्यूस्ड SO4 और इसके जो H+ आयन थे वो किसको दे दिए? इसने वाटर को दे दिए इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O. राइट. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या हो गया? मेटल्स का यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया. Cu जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में था 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2 हो गया. मतलब कि कॉपर क्या हो गया? इट इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, कॉपर सल्फेट बन गया वो. और H2SO4 में का दूसरा मॉलिक्यूल SO4 का SO2 में कन्वर्ट हो गया. बचा हुआ H2O बाहर निकल गया. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ. इट इटसेल्फ गेट रेड्यूस्ड.
ओके, H2SO4। सल्फर का देखो, सल्फर इज अ नॉन मेटल, अगेन जब H2SO4 से कर रहे हैं तो सल्फर इट फॉर्म्स SO2, राइट, और वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, H2SO4 का डिसोसिएशन हुआ है, लेकिन सल्फर का क्या हुआ है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन उससे ऐड हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और H2SO4 में का वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। सिमिलरली देखो कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया, CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन CO2 फॉर्म हो गया और सल्फर रेड्यूस होकर SO2 बन गया और वाटर मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो समझ में आया रिएक्शन की क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल का हो रहा है और इट इटसेल्फ इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ओके, इजी है, अच्छे से ये ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकालेंगे तो भी ध्यान में रह सकता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर सल्फर कार्बन जो ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं उनमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उनके कंपाउंड जब बन रहे हैं तो देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, डाइल्यूट H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू HCl, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब जब हम वाटर मिलाते हैं H2SO4 में, ये सारी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड के लिए थी, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। जब हम डाइल्यूट H2SO4 बोलेंगे तो उसका जो एसिडिटी का स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल हो जाता है, HCl के। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट होने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, वाटर, तो वाटर हमने मिला दिया मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो उसका एसिडिक लेवल जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका किसके इक्वल हो जाता है, HCl के, मतलब हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए डाइल्यूट H2SO4 इज अ वीक एसिड कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट रिएक्शन इज अ डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेट में नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिहाइड्रेट करना मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां पे भी कई रिएक्शन में आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत रहेगी तो हम कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है। देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली एंड लीव्स कार्बन बिहाइंड इज कॉल्ड एज शुगर चारकोल। देखो, शुगर में जब हम शक्कर में जब हम H2SO4 डालेंगे तो इट इज इतना स्ट्रांग होता है वो कि उसका पूरा वाटर मॉलिक्यूल पूरा बाहर निकाल देता है और जो शक्कर बची हुई रहती है वो काला काला उसमें बचा हुआ रहता है। जो काला काला पार्ट उसमें बचा हुआ रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेरिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला है, चेरिंग। तो फॉर एग्जाम्पल हमने C12H22O11 लिया है, कौन सा शुगर है ये, C12H22O11, ढूंढ के बताना है मुझे, ठीक है, रिवीजन लेक्चर में डिस्कस करेंगे C12H22O11 क्या है। तो अगर हमने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन मॉलिक्यूल रह जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो ये जो काला काला बचता है शुगर चारकोल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ओनली कार्बन लेफ्ट बिहाइंड, और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोला है, चेरिंग, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। कैसे रिएक्ट करेगा सॉल्ट्स के साथ में H2SO4, तो क्या होगा, NaCl व्हेन रिएक्ट विथ H2SO4 क्या होगा, बाय सल्फेट फॉर्म होंगे, देखो, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट जो बोलना है बोल सकते हैं, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर बाय सल्फेट भी बोल सकते हैं, पर आप लोगों के लिए इजी फॉर्म में इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या निकला है, HCl, ठीक है, क्लोरीन HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर KNO3 व्हेन रिएक्ट विथ H2SO4 इट अगेन फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे एसिड्स ही निकल रहे हैं। फिर कैल्शियम फ्लोराइड जब H2SO4, और दीज आर ऑल सॉल्ट्स, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और ऑल सॉल्ट्स। कोई भी रिएक्शन टाइम पे याद आती है, याद जो भी याद आएगी वो लिख सकते हो एग्जाम में। व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4 इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, ओके, एंड HF इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये बाहर निकल जाता है, ओके। तो ये सारी थी उसकी रिएक्शंस। इसके बाद में हम देखेंगे यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है सल्फ्यूरिक एसिड के। देखो, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज आता है, एक तो इंडस्ट्रियल केमिकल करके भी हम इसको जानते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में, बिकॉज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। सबको पता है फर्टिलाइजर कहाँ यूज होते हैं, खेतों में,
फॉर एग्जाम्पल कौन से फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इनमें क्या होता है, काय से बनते हैं ये सारे, ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट। सुपर फॉस्फेट कंपाउंड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट। ठीक है, इसलिए सुपर फॉस्फेट नाम पता होने चाहिए, पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। अब अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर किससे बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके बाद में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ्स, ठीक है, कलरिंग मैटर जो है उनमें भी क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले की जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप। वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ये सब कुछ बनाने में भी होता है, क्या क्या, पिगमेंट, पेंट्स, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट वगैरह। ओके, मतलब इसके बाद में इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग मतलब कि क्या होता है, देखो, मीन्स कन्वर्टिंग क्रूड ऑयल टू एलपीजी, गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल्स, वहां पर भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो हम लोग को रॉक्स वगैरह में से या रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर हम ऑयल कलेक्ट कर कर लेकर आते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हम क्रूड ऑयल। उसको रिफाइन करने के काम में, मतलब उसको प्योर फॉर्म में, जो हमको रिक्वायर्ड फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल्स, इन सबके कन्वर्जन में क्या यूज आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट बनाने के काम में भी एज अ इंटरमीडिएट सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। इन मेटालर्जी, ठीक है, मेटालर्जी मतलब क्या होगा, फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को क्लीन करने के काम में, जिसमें इम्प्यूरिटीज लगी हो उसको निकालने के काम में। फिर मेटल कोटिंग मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, पता है सब लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है, मेटल कोटिंग के काम में भी आता है। फिर फॉर गैल्वेनाइजिंग मतलब रस्टिंग प्रिवेंट करने के काम में भी H2SO4 आता है। ओके, बहुत सारे यूजेस है इसके। इसके बाद में इन स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज में जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं वो किसका लेते हैं, H2SO4 का लेते हैं। ठीक है, तो इन स्टोरेज बैटरीज ऑल्सो H2SO4 इज यूज्ड, किसमें, मेनली लेड स्टोरेज बैटरीज में। फिर एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग H2SO4 को यूज करके करते हैं लैब में, वहां पर एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट करके काम में आता है। फिर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है, देखो, नाइट्रोसेलुलोज मतलब उसमें क्या क्या होता है, सेलुलोज, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है, गन कॉटन जो है, या फिर गन पाउडर का रिप्लेसमेंट बनाया है इन लोगों ने नाइट्रोसेलुलोज, जिसको क्या नाम है, गन कॉटन। कहाँ पर यूज होता है इसका, इट इज यूज फॉर, ठीक है, इट इज यूज फॉर एक्सप्लोजिव पर्पसेस इन माइनिंग। ठीक है, कोल माइंस वगैरह होते हैं, वहां पे एक्सप्लोजन करना होता है डायमंड या फिर कोल या इन सबको निकालने के लिए, तो वहां पर क्या यूज होता है, नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गन कॉटन। ठीक है, पहले क्या यूज करते थे, गन पाउडर, अब इन द फॉर्म ऑफ गन कॉटन हम नाइट्रोसेलुलोज यूज करते हैं। वो किस किस चीज से बना हुआ है नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भी यूज है फॉर यूज एज अ एक्सप्लोजिव पर्पजेस इन माइनिंग वगैरह, इन सब में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो आए समझ में सबको यूजेस, देखो फिर से एक शॉर्ट में, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, पेंट्स, पिगमेंट्स, डाई स्टफ के फॉर्म में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, फॉर क्लीनिंग मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज बैटरीज, लेबोरेटरी रिएजेंट और नाइट्रोसेलुलोज मतलब एक्सप्लोजिव के फॉर्म में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूज है, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन या ऑप्शनल क्वेश्चन में किसी में भी पूछ सकते हैं कि क्या, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके नॉलेज में ये सब होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखे थे पहले, उसमें हमने सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों देखे थे, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला था H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O7। राइट, इसके आगे और 3 कंपाउंड्स है,
जो है 4th नंबर का है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसा आएगा देखो, पर ऑक्सी ग्रुप है तो हमको ये कहाँ से डिराइव होगा कि इसका स्ट्रक्चर पर ऑक्सी है और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 में हमको क्या करना है, एक ऑक्सीजन और ऐड कर देना है। ठीक है, H2SO4 में हमको क्या कर देना है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं तो एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा उसका स्ट्रक्चर का। तो पहले सेंट्रल सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक को हमको क्या करना है, OH बना देना है। राइट, फर्स्ट एक तो OH पक्का कर देना है। अब एक OH करने के बाद में से इसमें से एक H गया और एक ऑक्सीजन गया, तो बचे कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब इसकी अगर वैलेंसी हम डालेंगे सिंगल ऑक्सीजन, तो सिंगल ऑक्सीजन रहेगा नहीं, इसको डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन डाल देंगे। इसके बाद में 1 2 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, और 2 ऑक्सीजन। तो उसके लिए हमको उसका नाम बराबर ध्यान में रखना है कि पर ऑक्सी है। तो पर ऑक्सी ग्रुप में कैसा होता है, देखो जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है तो वहीं से पर ऑक्सी ग्रुप आया है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, HOOH। तो यहाँ पे भी हम उसको क्या करेंगे, HOO। राइट, तो एक सल्फर को हम HOO ग्रुप से अटैच करेंगे, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, और सल्फर के जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके, अब बात आई बेसिसिटी की, तो इट इज ऑल्सो मोनोबेसिक, क्योंकि एक ही OH ग्रुप है, और मोनोप्रोटिक बोलेंगे। ठीक है, ये OH ग्रुप मैटर करेगा जो डायरेक्टली सल्फर से अटैच्ड है। दिस इज पर ऑक्सी ग्रुप, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट इज पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2 फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, H2S2O8। राइट, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ग्रुप आ रहा है पर ऑक्सी। वाई, अगेन नाम में आ रहा है पर ऑक्सी। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो पर ऑक्सी ग्रुप O बॉन्डेड टू O। ओके, इसलिए पर ऑक्सी लिखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा आने वाला है। पहले तो एक सेंट्रल सल्फर एटम दे देंगे, उसको 6 होना चाहिए, 1 2 तो अगर सिंगल बॉन्ड में गए तो 3 4 5 6 डबल बॉन्ड में आएंगे। डबल बॉन्ड में कौन एक्वायर करेगा, 2 ऑक्सीजन और एक OH तो पक्का है ही सही। फिर दूसरा ऑक्सीजन कॉमन कर देंगे, तीसरा ऑक्सीजन भी कॉमन कर देंगे। राइट, फिर सेम टाइप का स्ट्रक्चर हम दूसरे सल्फर के लिए भी ड्रॉ करेंगे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल में, तो 1 2 3 4 5 6। राइट, तो टोटल देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, पर ऑक्सी नाम इसीलिए आया क्योंकि 2 सेंट्रल जो एटम है सल्फर के वो 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसीलिए पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका डायमर हो रहा है। राइट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म करेंगे पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ एक ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इसकी बेसिसिटी की बात करेंगे तो इट इज डायबेसिक और इट इज डायप्रोटिक। राइट, क्योंकि 2 OH ग्रुप है इसमें प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट इसमें का। थायोसल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला कैसा आएगा, H2S2O3। एक H2SO4 में से क्या करना है, एक -1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, H2SO4 में से एक ऑक्सीजन जब माइनस करेंगे तो एक सल्फर ऐड भी करना है। क्यों, क्योंकि थायो ग्रुप बोल रहे हैं। थायो मीन्स 2 सल्फर एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। राइट, थायो मीन्स 2 सल्फर एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 6 होने चाहिए इस केस में, तो एक OH चला जाएगा। राइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब इसमें से 2 सल्फर के बीच में हम क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड देंगे। एक ऑक्सीजन के इसमें डबल बॉन्ड और दूसरा एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो उसको OH और OH देंगे। राइट, तो स्ट्रक्चर थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थोड़े से टेक्निकली ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड है तो डबल बॉन्ड एक सल्फर के बीच में है और एक सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, और बाकी 2 OH के इसमें चले गए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आ जाएगा H2S2O3 का, जिसमें 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 सल्फर है। ओके, इस तरीके से हमको सल्फर के सेंट्रल एटम की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करना है, उसकी बेसिसिटी भी बताना है, डायबेसिक है ये भी और डायप्रोटिक, और उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करना है। ठीक है।